This is our 53rd presentation. We have been doing these presentations over a year, but today's presentation is a very special one, where you have to participate, you have to experience, you have to see the results yourself, not just listen, observe, and remember. Here, you are asked to bring 6 different tastes, and Nidhi Pandyaji is going to explain us how we are going to experience the taste and its taste role in our health and well-being. Just a minute. I have my 6 plates, 6 cups with the different food items, like what she suggested. And I hope you all have. And also, you have to have a glass of water to switch between the tastes. If you need 5 minutes because you're all at home, please take time. Now, with that, I'll introduce Nidhi Pandyaji. She's NA-MA certified 3rd generation Ayurvedic practitioner. Ayurveda is in her family. Introduced to Ayurveda right from the childhood, and she knows the nuances of Ayurveda, and definitely the life extensively taught her the importance of Ayurveda and implementation of Ayurveda from ancient Sanskrit Ayurvedic scriptures. She has been practicing Ayurveda for 10 years in New York City and in India. She was raised in India. It is her passion and vision to see the world where everyone else is self-aware and is living intuitively with mind-body balance. To bring this vision to reality, she has created this health transformation program to enable everyone to learn, integrate, and live their best life possible. I have experienced her presentation demo at the Consul General's office, and immediately I invited her to give the same experience to you. This is what everyone needs and deserves to live their life imbued with vitality, health, healthy glow, energy, and love. Ayurveda is a gift to this world, she thinks. I too think so. Nidhi ji, please continue the presentation. Namaste, everyone, and thank you so much for having me. Before we even start, I want to ask you a couple of questions. Is everybody comfortable? How are you more comfortable? Unmuting the mic and talking, or putting communication in the chat box? I think unmuting will be better for them. Okay, unmuting will be better for them. Yeah. Also, because it's a very interactive presentation. Geeta ji, it's a very, very interactive presentation. So I want people to participate. Also, what language is everybody the most comfortable in? Hindi. Hindi. So I will do a little bit of mix of Hindi and English. Yeah, sure. Okay. That's great. Whatever works. So anyways, again, namaste all of you. I'm very happy. मेरे को बहुत खुशी है कि मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर हूँ. और Ayurveda, which is a part of where we come from in India. आज West में आज लोगों ने उसको बहुत अच्छे से अपनाया है. And people are using it in their lives. People are studying Ayurveda. और ये एक बहुत basic science है, which is a very profound science. हम अपनी सेहत का, हमारे मन का, हमारे तन का, सबका ध्यान रख सकते हैं using Ayurveda. तो आज हम कुछ जो 6 tastes हैं, जो आयुर्वेदा में हम षड रस बोलते हैं, the 6 tastes, हमारा जो सब खाना है इंडिया में, रोटी, दाल, चावल, सब्जी, everything is combined to give us these 6 tastes. मगर ये 6 tastes से, these 6 tastes serve a certain function. आपके शरीर में क्या होता है 6 tastes से, वो आज हम देखेंगे. Does almost everybody have their 6 tastes? क्या सब लाए हैं? Geeta ji, can you confirm if almost everybody has it?
Yeah, yesterday we sent it in the group chat. Announcement में एक बार अगर नहीं देखा है तो please check कीजिएगा. Yesterday I sent a list of items which Nidhi ji sent it to us. Huh. And if people need a little bit of time to go and get the 6 items, that's fine too. I don't mind waiting because it'll be much more interesting, Geeta ji, if they actually have the items, you know. I understand if a couple of people don't, but almost everybody should have the items. Then it's a lot more fun. Is everybody familiar with the word Ayurveda? आप आयुर्वेद किसी ने अपने लाइफ में यूज करता है? I want everyone to interact, participate. आप अपने, you know, talk to me, tell me what your experience with Ayurveda has been. Who's going to go first? Why you guys are so quiet today? Come on. कोई भी, आपको हिंदी में बोलना है, गुजराती में बोलना है, इंग्लिश में बोलना है, I understand all languages. Hi, can I say Of something? course, please, सब please. जड़ी बूटी में से बना हुआ है. Sorry, Hi, I'm Neelam ji Neelam. wanted to say something, yeah? Yeah. In Ayurveda, you know, my daughter, she was having colitis issue. So she was that colonoscopy and all, you know. She started some allopathy, but it didn't suit her. Then ultimately then she went to India actually, and she came to some nice Ayurvedic doctors, you know. So I think from since 3 to 4 years, I don't know the names of the medicine, but she's starting and it is controlled now. Very So good. it is controlled. Sharing, Neelam ji. Thank you so much. And I have one more question on this. See, my brother is going through liver cirrhosis. So now doctor is telling about transplant, you know, which is very usual over there. So, but now somebody has recommended about Ayurvedic. So they are starting with Panchakarma and then therapy and then medicine. Is that a good thing to start? It's a good approach. Yeah, if the doctor is good, it's a good approach. Yeah, he's in India in Delhi. Huh. It's a good approach. It's a good approach. Yeah. Thank you for sharing, Neelam. I always take some for medicine also, for cough also I have some Ayurvedic, some medicine and all. I always take that. Very good. Thank you. पर मेरे को आपको सबको बोलना है, right? When you grew up in India, हमें लगता है आयुर्वेद का मतलब अगर कोई बीमार हो, you take जड़ी बूटीज, you take herbs. But actually, Ayurveda is way beyond that. आयुर्वेदा आपके रोज दिन में, आपके हर खाने में, आपके हर क्षण में, it's in every moment of your life. क्योंकि आयुर्वेदा is not only related to disease. ऐसा नहीं है कि जब आप सिर्फ बीमार हो तब आप आयुर्वेद, जो आप रोज का खाना खाते हैं उसमें भी आयुर्वेद समाया हुआ है. अगर आप आयुर्वेद से जिएंगे तो आपको कभी आयुर्वेदिक जड़ी बूटी भी नहीं लेनी पड़ेगी. Because the whole lifestyle, the whole design of Ayurveda is such that on a daily basis we think about life Ayurvedically. ठीक है? तो अभी हम ये जो 6 टेस्ट हैं आयुर्वेदा में, ये जो 6 रस जो हमारे खाने होते हैं रोज on a daily basis Indian food has, इसका क्या पर्पस है, इसका क्या फंक्शन है, we are going to learn that today. So I think somebody's mic is left unmuted and it's creating noise for everybody else as well. So the host, Geeta ji, if you can mute people, yeah, it would be great. I think somebody's accidentally unmuted. Okay, great. ठीक है ना, आप जितना पार्टिसिपेट करेंगे उतना मुझे मजा आएगा आपको बताने में, आपको ये साइंस सिखाने में. मुझे समझ में आएगा कि where you stand with it, and it'll be a lot more fun for me than to, you know, participate and teach, do all of those things. Okay, so the first taste that we will talk about is हमारे में जो 5 टेस्ट, जो 6 टेस्ट हैं, मैं उनके नाम बताती हूँ. One is sweet tasting, madhura rasa. I'm going to share my screen so it is easy for you as well. Okay.
आपको दिखेगा इसमें कि मैंने भेजा है आप लोगों सबको. फर्स्ट इज स्वीट टेस्ट, मधुर रसा. स्वीट टेस्ट का मतलब ये नहीं है कि आपको मुंह में एकदम मीठा लगना चाहिए. स्वीट टेस्ट इज जो आपको मुंह में संतोष दे, something that coats your mouth, right? But let's go through all the tastes. Second है sour, खट्टा. थर्ड है नमकीन. फोर्थ है कड़वा, bitter. फिफ्थ है तीखा, pungent. और सिक्स्थ है कषाय, मतलब सूखा, जो आपको मुंह में सूखा लगे. तो हमारा जो खाना है ऑन अ डेली बेसिस अमेरिका में, सॉरी इंडिया में, इसमें ये सब 6 टेस्ट आते हैं. बिकॉज अगर हम ये 6 टेस्ट को मिला के इनके मिश्रण से we can eat food, you're always going to have a balanced diet. In the West, the concept of a balanced diet is bit of rice, a little bit of protein, little bit of carb, little bit of fat. That's not what the balanced diet is. Your diet is balanced when you have all of these 6 days. Okay? So let's go into the first taste. Madhura rasa, sweet, meetha. Meetha taste. Has anybody eaten any of these options? Milk, jaggery, cooked rice? अगर आपके पास है तो मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा सा उसको अपने मुंह में लीजिए, आप ट्राई करिए. I see Dr. Rao has it. If anybody else has it, take it in a little bit. Dr. Rao did. Huh? Dr. Rao, I'm making you do this the second time. Jaggery. Jaggery. Yes, second time. Jaggery. So, जब आप मीठा कुछ भी खाते हैं, मीठा मतलब अगर आप चावल भी खाएंगे, वो चीज जो आपको मीठा लगे, जिसमें खटास नहीं है, जिसमें नमकीन नहीं है, जिसमें और कुछ भी नहीं है, तीखा नहीं है, उस खाने को मीठा बोलते हैं. So your rice, milk, jaggery, ghee, ये सब आपके मुंह में आके पूरे आपके मुंह में समा जाता है. उसका टेस्ट spreads throughout your mouth and it makes you feel like it's very comfortable. ये हमारे आहार में सबसे important taste है. It's the most important taste. And the reason is, जो भी हमारा नया टिश्यू बनता है, हमारे शरीर में जो भी धातु बनते हैं, नए सेल्स बनते हैं, those are all made from this sweet taste. If you don't have the sweet taste, we don't have it in our foods, we can't make anything out of the sweet taste. Right? How do we find the sweet taste? We find it in cooked rice, we find it in gehu, we find it in ghee, in our rotis, in all our dhans, in milk, gur or jaggery. This is the sweet taste. And it is the most important taste. अगर आपने ये बहुत ज्यादा खा लिया मीठा, तो आपका शरीर फैल जाएगा, बड़ा हो जाएगा. अगर आपने मॉडरेशन में खाया, तो इसी खाने से आपके नए सेल्स बनेंगे. Then comes the second taste. Lemon, tamarind. And lime juice. अगर आप कुछ खट्टा सोचते हैं, तो सबसे पहले क्या होता है आपके मुंह में? अगर आप सोचिए, आप खट्टा कोई भी खट्टी चीज के बारे में, खटाई के बारे में भी सोचेंगे. And I want someone to participate. This is really a lot more fun when everybody participates. Pickle. Okay. And जब आप पिकल के बारे में सोचेंगे, तो भी आपके मुंह में क्या होगा? What will happen in your mouth? Saliva. हाँ. Somebody said that. Who said that? I said, but the water, the mouth has water in it because we think of the pickle and then it comes that. Absolutely. I can't see you. What is the name? Which one is saying it? Madhu. Madhu. Madhatu. Madhu. Yeah. Madhu. Yeah. Okay. So Madhuji, absolutely right. I can't see you. I'd love to see you because I'd love for someone to be participative. It makes it more exciting for me. I understand if everybody is following. Okay. Somehow I can't see you. I don't know why. Okay. I think this, it wasn't changing. Yeah. So now you can see. Now you can see her. Yeah. Okay. Now Yeah. you see her. Okay. Okay. Lovely.
Okay, very good. So yeah, so Madhu ji, you're absolutely right? That हम जैसे ही खट्टा सोचते हैं, we start salivating. हमारे मुंह में saliva आने लगता है. Yeah. Saliva का most important function है थूक का कि it starts breaking down your food. It starts the pachan of your food. तो जो खट्टा खाना होता है, उससे आपके खाने का पचन शुरू हो जाता है. Saliva is a digestive enzymes. Similarly, आपके पेट में भी बहुत सारे digestive enzymes हैं जो आपके खाने को break down करते हैं, आपका पचन शुरू करते हैं, उसमें से nutrition निकालते हैं, and the sour taste is mainly responsible for that, to start the digestion of your food. तो अगर आप रूखा सूखा खाना खाएंगे और कुछ भी खट्टा नहीं होगा उसमें, तो वो आपका process will start difficulty. It is so powerful in breaking down your food that even the thought will start digestion. Okay, now I want to ask you one question. अगर आपने आपके शरीर पे कुछ आपको लग गई है, अगर आपकी you've got hurt on your skin, right? आपको bruise है, and if you put something खट्टा sour on it, आपको जलेगा कि आपको अच्छा लगेगा? जलेगा. Absolutely. It will burn you. अगर आप जलेगा. उसका मतलब खट्टे के अंदर गर्माहट है कि ठंडक है, शीतलता है? I think ठंडा है normally. गर्माहट. अगर आपको कुछ जल रहा है, अगर आपको फ्रिज में भी रखेंगे नींबू को, आप उसको बर्फ भी बनाएंगे, तो भी अगर आप छुएंगे अपने आप को, अगर आपको लगी है, आपको कहीं चोट लगी है, अगर आप छुएंगे खट्टे को, तो आपको जोर से जलेगा. Now जलन, the word जलन comes from heat. अगर आप कुछ मीठा लगाएंगे, आप दूध लगाएंगे या आप घी लगाएंगे, आपको कहीं लगा है और लगी है और दूध लगाएंगे, घी लगाएंगे, तो वो आपको ठंडक करेगा, आपको ठंडा शीतलता महसूस होगी. मगर अगर कुछ खट्टा लगाएंगे तो आपको जलेगा. उसका मतलब ये है कि खट्टे खाने में गर्माहट है. अगर आप बोले मेरे शरीर में बहुत गर्मी बढ़ गई है, तो फिर आपको खट्टा कम खाना चाहिए, पर थोड़ा सा फिर भी खाना चाहिए. अगर आपको अपना खाना पकाना है, घर में आपको खाना पकाना है मानिए, तो आपको उसके लिए गरम गैस चाहिए कि ठंडा गैस चाहिए? गरम गैस चाहिए, राइट? तो ये हम जानते हैं कि अगर हमको खाना को पकाना है और पचाना है, बाहर हम पकाते हैं, अंदर हम पचाते हैं, दोनों कामों के लिए हमको गर्माहट चाहिए, वार्मथ चाहिए. पकाना एंड पचाना. बिना गर्माहट के, बिना सन के, बिना सूरज के हमारा प्लांट भी नहीं उग सकता है. कुछ जिंदगी में पूरे धरती पे कुछ भी नहीं प्रोसेस हो सकता है बिना गर्माहट के. जो चीजें ठंडी है उससे शरीर बनता है, जो चीज खट्टी और गर्म है उससे हमारा पचन बढ़ता है. उसके लिए हम हमारे खाने में मसाले यूज करते हैं. अगर आपके शरीर में बहुत गर्माहट है, आपको बहुत फोड़ियां हैं, आपको कहीं बहुत जल गया है, तो फिर आप गरम कम खाएंगे. सावर खट्टा भी गरम करता है, आप खट्टा भी कम खाएंगे, जरा सा खाएंगे. उसके लिए हमारे इंडिया में खट्टा हम किसके साथ ज्यादा खाते हैं, कौन सा स्वाद? जैसे आपका नींबू पानी है, आप खट्टे के संग क्या मिक्स करते हैं नींबू पानी में? शुगर. खट्टा और खट्टा मीठा साथ जाता है. सॉरी, somebody said something else. Sugar, salt. So हाँ, शुगर और सॉल्ट कप के ऊपर भी हम आएंगे, पर हम जनरली खट्टा और मीठा हम साथ बोलते हैं, राइट? अगर आपने खट्टा और नमकीन बहुत खा लिया तो हम बात करेंगे उसकी क्या होता है, पर खट्टा मीठा साथ जाता है, क्योंकि खट्टे की गर्माहट से आपका ब्रेक डाउन करेगा और मीठे की मिठास से आपके शरीर में शीतलता होगी, तो आपके शरीर में एक बैलेंस आ जाएगा. बहुत गर्मी नहीं होगी, बहुत ठंडक नहीं होगी, मिक्स होगा और आपका पचन बढ़ेगा. अब हम तीसरी, और गर्मी में सबसे अच्छा मौसम नींबू पानी पीने का कौन सा है? कौन से मौसम में नींबू पानी का मन करता है? गर्मी समर में. क्या होता है, समर में हमारे शरीर में इतना पसीना आता है, इतना पानी लूज होता है कि
एक भूख मर जाती है, शरीर बहुत गर्मी में जाएंगे ना, इंसान को भूख नहीं लगेगी, क्योंकि जो रुचि होती है, रुचि मतलब खाने की जो आकांक्षा होती है, इच्छा होती है, वो चली जाती है समर में। तो अगर आप खट्टा पिएंगे तो फिर से आपकी अग्नि एक बार वापस आएगी और वो मिठास से आपको संतोष मिलेगा, वरना शरीर से गर्मी में शरीर खत्म हो सकता है। अब जो तीसरा तो अगर आपके पास कुछ भी खट्टा है, मैं चाहती हूँ आप थोड़ा सा अपने मुंह में कोशिश करके ट्राई करिए, देखिए कि आपका कैसे थूक बनता है। आप खुद समझिए कि अब थोड़ा सा भी खट्टा अपने जीभ पर अगर आप रखेंगे तो आपका थूक बनेगा। थूक बनेगा मतलब आपके पेट में भी पचन की चीजें बन रही हैं। बहुत खट्टे खाने से कभी सूजन होती है शरीर में, किसी को हुई है आज तक? हाँ, हाँ, बहुत खट्टे खाने से बहुत सूजन हो सकती है, क्योंकि जैसे आपकी जीभ पानी बन रहा है, आपकी जीभ पे थूक बन रहा है, सलाइवा, वैसे ही आपके शरीर की जो सब जूसेस हैं, सब लिक्विड्स हैं आपके शरीर के, सब उथल पुथल थोड़े से हिलने लगते हैं आपके जॉइंट्स में, लिक्विड आपके शरीर में, और उससे अगर आपने बहुत खा लिया तो आपको सूजन हो जाएगी। थोड़ा सा आपके शरीर में पानी भर जाएगा, क्योंकि आपने पानी सब आपके सेल्स के अंदर से बाहर खींच लिया है बहुत ज्यादा खट्टा खाने से। तो तो हम कितना खट्टा हमारे खाने, हम थोड़ा सा नींबू निचोड़ेंगे, कभी हमने आंवला डाल दिया खाने में, कभी कोई चीज में इमली जा सकती है मिठास के साथ अपने, और गर्मी में नींबू पानी पिएंगे। एक उम्र के बाद बहुत ज्यादा खट्टा खाएंगे तो आपको सूजन हो जाएगी। फिर तीसरा है सॉल्टी। अब आप सब अमेरिका में रहते हैं, जब बाहर स्नो होती है तो अपने ट्रक्स जाते से क्या निकलता है कि रोड में से सॉल्ट मेल्ट हो जाए, क्या निकलता है? salt. सॉल्ट निकलता है। और दूसरी बात, अगर आपको जले पे नमक छिड़कने से क्या होता है? जलन जलता जलता है। ओके, अब इसका मतलब क्या है? सॉल्ट ठंडा है कि गर्म है? गरम. गर्म है। आपका पानी भी, स्नो भी मेल्ट हो जाता है, इतना ताकत है। और ना ही उसको सिर्फ मेल्ट करने की ताकत है, गलाने की ताकत तो है गर्माहट से, उसको खरोचने की भी ताकत है। सॉल्ट इतना खारा होता है, इतना उसमें खरा गुण होता है, इतना छूने में भी कोर्स होता है कि वो आपका ऐसे ऐसे करके आपकी सब चीज को खारा कर सकता है, अंदर से चीजों को स्क्रैप कर सकता है। तो आपकी जो खाने में, जब आप खाना खाते हैं तो आपका मैदा खा लिया, चीज खा लिया, कभी कोई चिकनी चीज खा ली, वो क्या होता है आपके शरीर में जाके, सॉरी somebody else is talking, mute नहीं है किसी का, ओके। तो जो सॉल्ट होता है आपकी बाकी, अगर आपके शरीर के अंदर कोई खाना चिपका हुआ है, चीज चिपका हुआ है, कुछ चिपका है, सॉल्ट में ताकत है कि वो जाकर उसको गला सकता है। जैसे वो आपके स्नो को गलाता है, आपके खाने में कुछ बहुत कठिन है तो सॉल्ट उसकी गर्माहट से, उसके तीक्ष्णता से उसको जाके गला सकता है, और फिर आपका सब खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो सकता है। उसके लिए सॉल्ट के बिना हम खाना खा ही नहीं सकते, हमको खाना स्वाद ही नहीं लगेगा, क्योंकि वो इतना एसेंशियल है हमारे शरीर में सॉल्ट। दूसरी बात करता है सॉल्ट कि आपने अगर बहुत सॉल्ट खा लिया तो वो क्या करेगा, आपकी खुद की धातु को गलाएगा, आपके खुद के टिश्यूज को गलाने लगेगा, आपका खून नमकीन हो जाएगा, और जो वो खून आपके पूरे शरीर में जाएगा, फ्लो करेगा, वो जब भी आपके जॉइंट्स पे पहुंचेगा तो आपके जॉइंट्स में से फ्लूइड निकालने लगेगा। वो आपके लिए अच्छा नहीं है बहुत ज्यादा। तो आप नाप से नमक खाएंगे, नमक जरूरी है, और नाप के अनुसार नमक खाएंगे। अगर आपने बहुत ज्यादा नमक खा लिया तो आपका खून नमकीन हो जाएगा, तो एक प्रोसेस होता है, उसको ऑस्मोसिस बोलते हैं, उससे सब पानी दूसरे टिश्यूज में से निकल के आपके खून में चले जाएगा, फिर से आपको सूजन हो सकती है।
और उसको ब्लड प्रेशर भी हो सकता है ना, ब्लड प्रेशर। सॉरी, हाँ, क्योंकि ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ता है? क्योंकि आपकी बाकी के पानी के, आपकी बाकी टिश्यू पानी है, राइट? आपके हर टिश्यू में पानी है, मसल में पानी है, सेल्स में, हर चीज में पानी है। वो पानी निकल के खून में आ जाता है, उसको सॉल्ट गलाने लगता है, बाकी सब पानी को गलाने लगता है आपके शरीर में, और वो खून में ले लेता है उसको, खून में ड्रैग करता है। अब आपका खून, अगर आपके पाइप में, आपके नल में बहुत सा प्रेशर हो पानी का, बहुत ज्यादा पानी आएगा तो आपका प्रेशर हाई होगा। उसी हिसाब से बहुत ज्यादा सॉल्ट होता है तो सब आजू बाजू का पानी के खून में आ जाता है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, राइट? तो आप सॉल्ट हिसाब से खाएंगे। आयुर्वेद में कौन सा सॉल्ट खाने को कहते हैं? सेंधा नमक, सैंधव। मेरे वो क्या घर में, हाँ जी, वो क्या होता है? संदव? Pink हाँ, सैंधव, सैंधव। पता है जो नवरात्रे में खाते हैं उसको सैंधव बोलते हैं। लेकिन वो संचड़ बोलते हैं, वो सेम थिंग? क्या बोल रहे हो? संचड़ बोलते हैं, वो सेम थिंग? नहीं नहीं, संचर वो नहीं है, संचर दूसरा है। संचर अलग है, सैंधव अलग है। Is that a Himalayan salt? Same thing? No. What? Himalayan Himalayan salt. salt is similar, but Himalayan white salt. आप हिमालयन पिंक सॉल्ट भी खा सकते हैं, बट हिमालयन व्हाइट सॉल्ट, क्योंकि ये जो हिमालयन सॉल्ट है, जो सैंधव है, वो पानी के अंदर से नहीं आना है, वो रॉक्स के ऊपर से आया है, राइट? वरना सी सॉल्ट होता है, वो पानी के अंदर से आता है, वो पानी के अंदर, तो वो आपकी पानी, शरीर के पानी को बहुत हिला सकता है। अगर वो रॉक से आया है, उसमें हल्का से एक सूखा हुआ नेचर है उसका, वो आपका इतना ज्यादा ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ाएगा। Okay. अगर आपके पास सॉल्ट है या कुछ है, सीवीड है, चाट मसाला है, आप थोड़ा सा अपने जीभ पे रखिए, उससे भी आपका पानी आप नोटिस करेंगे, राइट? सॉल्ट से अगर आपका पेट में दुख, आपके पेट में बहुत गैस हो गई है, तो आप अजवाइन नमक खाते हैं, क्योंकि वो नमक आपके खाने नीचे लेके जाता है, वापस उसको ब्रेक डाउन करने लगता है। अब है चौथा टेस्ट को मैं बोलूंगी, वो है कड़वा। हमारे में कड़वा बहुत अच्छा मानते हैं, पर आपके पास अगर कुछ है, मेथी या आपके यहाँ पे आपने कुछ लिखा रखा है, तो आप खाइए उसको, थोड़ा सा अपने मुंह में चखिए। ये कड़वा जो टेस्ट है वो क्या करता है? आपने किसी ने सुना है कि कड़वे से खून साफ हो? सुनिए कि जी हाँ, करेला तो करेला से. yeah. तो अगर मीठे से मेरा खून चिकना होता है, मैंने बहुत मीठा खा लिया तो चिकना हो गया, बहुत खट्टा खा लिया, थोड़ा, सबको जरूरत है, थोड़ा बहुत जरूरी है, आप अपना चावल खाइए। बहुत मीठा खाएंगे तो चाशनी बन जाएगी आपके खून में, चिकना खून हो जाएगा। बहुत थोड़ा खट्टा खाएंगे तो पचन होगा, बहुत खट्टा खाएंगे तो जलन होगी। थोड़ा नमकीन खाएंगे, खाना वापस आएगा, बहुत नमकीन खाएंगे तो आपके शरीर के सब फ्लूइड्स उथल पुथल हो जाएंगे, उसमें भी जलन होती है, राइट? ना जो बिटर टेस्ट है, अगर आपके खाने में जो आप खा रहे हैं, ये जो 3 टेस्ट हैं जो हमको सबसे पसंद होते हैं, खट्टा, नमकीन और मीठा, मीठा, खट्टा और नमकीन, ये हमने खाया, तो अब हमारे शरीर का डाइजेशन, पचन शुरू, मतलब पूरा एक एक्टिविटी शुरू हो गई हमारे शरीर में, पच रहा है, बन रहा है। अब सोचिए आपका खाना पूरा तेज पे हो गया, खाना बना रहे हैं और उबल रहा है। अब जब ये उबल रहा है तो एक तरह की चिकनाहट जो होती है खाने बना, पचन में और पकने में, सेम, उसको आपको ठंडा करना है, उसको आपको चिकनाहट को आपको निकालना है, वापस बोले अच्छा अब हो गया पचन, अब आप शांत हो जाओ थोड़ा। उसके लिए हम बिटर खाते हैं, हमारे खाने में कुछ कड़वा होना जरूरी है, वो मेथी हो, वो करेला हो, वो दूसरे तरह की भाजी हो, हरी भाजी, इस कढ़ी पत्ता हो, उसके लिए कढ़ी पत्ता हम हर चीज में डालते हैं, क्योंकि फिर वो जो इस प्रोसेस को थोड़ा शांत रखेगा, उसको थोड़ा सा नीचे लेकर आएगा। सो कड़वा जो टेस्ट है उसमें एक तरह की शीतलता होती है और एक चिकनाहट निकालने की उसमें, अगर आप कुछ कड़वा सोचेंगे तो आपके मुंह में पानी आएगा कि वो सूखेगा? पानी चलेगा। पानी चला जाएगा। उसी हिसाब से
खून में जो चिकनाहट होती है वो चली जाती है कड़वे खाने से। आपने सुना है जिसको डायबिटीज होती है उसको बोलते हैं कड़वा खाओ, जी हाँ। क्योंकि मिठास से चिकनाहट बढ़ती है, कड़वे से चिकनाहट कम होती है। यस, तो आपको हर चीज में, राइट, आपके हर खाने में, उसके लिए मेथी का मुठिया खाते हैं, मेथी का थेपला खाते हैं, जिसमें सब तरह के रस होते हैं। उसमें थोड़ा खट्टा होता है, थोड़ा मीठा होता है, थोड़ा सावर होता है, सब चीज खट्टा मीठा नमकीन, और मेथी भी डलती है। हमारे इंडियन सब खानों में ये चीज होती है कि सब चीज का मिश्रण होता है अच्छे से, और सब चीजों का कोई फंक्शन होता है। अब हम चलते हैं 5वें पे, जो है तीखा। आपके कुछ तीखा खेल सकते हैं तो आप जरा सा कुछ ट्राई करिए अपने मुंह में, अदरवाइज कोई बात नहीं। तीखे से क्या होता है? तीखे में गर्माहट है, ठंडक है? गर्माहट। गर्माहट है। सो तीखा खाना होता है, उससे हमारे शरीर में जलन होती है, मगर कुछ भी, जो भी चीज दुनिया में गर्मी करती है उससे खाना पकता है। अगर आपने अपना खाना पकाया और आपने गैस बहुत तेज कर दी, तो आपका खाना पकेगा कि जलेगा? जलेगा। उसी हिसाब से अगर हमने बहुत तीखा खा लिया, या बहुत हरी मिर्ची खा ली, बहुत लाल मिर्ची खा ली, तो आपका अंदर से जलन हो जाएगा, आपका शरीर जल जाएगा, आपका खाना पकेगा, आपको हाँ एसिडिटी। हाँ, एसिडिटी क्या होती है? गर्माहट होती है, राइट। मगर आपने थोड़ा खाया और आपने अच्छी चीजें खाई, मतलब आपने बहुत लाल मिर्च नहीं खाई, मगर आपने खाया थोड़ा सा, आपका जीरा का वघार हो गया, आपका लौंग का वघार हो गया, थोड़ी आपने काली मिर्च खा ली, थोड़ा सा अदरक खा लिया, वो अच्छी चीजें होती हैं। और उससे क्या होता है, उस चीज से क्या होता है, आपके शरीर में आपका खाना ब्रेक डाउन होगा। आप कुछ भी भारी खाएंगे, उसमें आप स्पाइसेस डालेंगे। अमेरिकन्स की तबीयत इतनी क्यों खराब होती है? बिकॉज उन लोग सिर्फ भारी भारी खाते हैं, चीज खा लिया, ये खा लिया, वो खा लिया, मगर उसमें कोई भी तरह की स्पाइसेस नहीं होते, कोई भी मसाले नहीं होते हैं। हम जो खाना खाते हैं, अगर आपने समोसा भी तला है, उस समोसे में थोड़ा धना होगा, थोड़ा सा तिखास होगी, थोड़े से गरम मसाले होंगे, वो मसालों से आपका समोसा बचेगा, वो मसालों से ही आपका, उसकी गर्माहट से आपकी भारी चीजें पचेंगी। तो हमारे सब खाने में मसाले होते हैं, इतना ही मसाला खाइए जिससे आपकी जीभ में जलन नहीं हो। अगर आपकी जीभ में जलन हो, मतलब आपके शरीर में भी जलन होगी, पचन से ज्यादा जलन होगी। अगर आपकी जीभ में जलन नहीं है तो आपके शरीर में भी जलन कम होगी। इतना मसाला खाएंगे। अब ये जो लास्ट टेस्ट है वो है एस्ट्रिंजेंट, सूखा, कषाय। जैसे अगर किसी को कभी ऐसा हुआ है कि बहुत चना खा लिया और मुंह सूख गया, या बिना बिना हम इंडिया में हम आलू हर वक्त तलते हैं, सूखा आलू उबाल के नहीं खाते हैं, या तो उसको पराठे में खाते हैं, या समोसे में खाते हैं, या अच्छी सी उसकी कोई सब्जी बना के खाते हैं। अगर आपने सूखा खा लिया, राइट, आपको मॉडर्न न्यूट्रिशनिस्ट बोलेगा अरे बहुत अच्छा है, आपने फैट नहीं डाला, आपने ये नहीं किया। जो सूखा खाना है, आपकी छाछ भी, आपको छाछ को भी ताकत है आपके खाने को सुखाने में। ये क्यों जरूरी है आपके शरीर में? क्योंकि आपका एक्सेस चीज वापस सुखा देती है। आपके खाने के एंडिंग में ऐसा कुछ आप सूखा खाएंगे, शुरुआत में आपको ऐसी चीज खानी है जिससे आपका थूक बने, एंडिंग में आपको ऐसी चीज खानी है, आपका दाल, पीली दाल भी सूखी होती है, ऐसी चीज खानी है कि सब चीज सूख जाए। जब सब चीज सूख जाएगी तो उसके बाद आपके खाने को और भूख नहीं लगेगी, ये पेट में भूख सेटल हो जाएगी। उसके लिए चने से भूख मरती है, सूखा खाना, चना, आपका मूंग दाल का स्नैक जो होता है, सिर्फ आलू। मगर सबसे बेस्ट है छाछ। छाछ में एक तरह की, इवन दो वो लिक्विड होता है, एक तरह की सुखावट होती है जिससे आपको एक्सेस भूख नहीं लगे। अगर आपने बहुत सूखा खाना खा लिया तो फिर आपके शरीर में डाइजेशन हिलेगा ही नहीं, आपका पेट साफ नहीं होगा, आपका पेट दुखेगा। थोड़े से कटोरी दाल, बस एक कटोरी दाल
चावल में नमी होती है, दाल में सुखावट होती है। उसके लिए हम दाल में खूब पानी डाल के उसको पकाते हैं, खूब सारा पानी डालते हैं, और हम उसको खाते भी, दाल को हम खाते भी मॉइस्ट है, पूरा एक लिक्विड फॉर्म में खाते हैं। एक कटोरी से ज्यादा हमारे शरीर को जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ब्रेक डाउन ही नहीं हो पाएगा। अब मैं आप लोग से एक चीज पूछना चाहती हूँ, हम हमारे हर खाने में क्या करते हैं? शुरू में डाल के क्या डालते हैं उस तेल में या घी में? क्या हम अंदर डालते हैं? जीरा, राई, वघार करते हैं, है ना? हम वघार करते हैं, दालें। वघार, कढ़ी पत्ता डालते हैं। देखिए, हम सब ये स्वादों को शुरू में ही हमारे खाने में डालते हैं। स्वीट, सावर, स्वीट मतलब घी में एक मिठास है, उसके अंदर हमने थोड़े से मसाले डाले, पंजेंट डाला, तीखा डाला, कढ़ी पत्ता डाला जो कड़वा होता है, और उस कड़वे से आपका कोलेस्ट्रॉल, तो लोग बोलेंगे घी से तो हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, मगर आप थोड़ा सा घी डालेंगे और उसमें आपने थोड़े मसाले डाले, आपने कढ़ी पत्ता डाला, उस मसालों से और कढ़ी पत्तों से ही आपका घी पचेगा, बिना उसके आपका घी नहीं पचेगा, वघार से घी पचेगा। तो जो हमारा इंडियन खाना है वो उस हिसाब से डिजाइन्ड है, हमारा इंडियन खाना, कि आपके पास सब टेस्ट हैं, आपको आपके बन रहे हैं, सेल्स बन रहे हैं मीठे से, खट्टे से खाना पच रहा है, अग्नि बढ़ रही है, सोल्टी से भी आपका खाना पच रहा है, जो चिकनाहट है वो अंदर की चिकनाहट थोड़ी सी उसको निकाला जाएगा, जैसे वो खरता से, बिटर से एक शीतलता आएगी आपके शरीर में, और शीतलता आएगी और चिकनाहट कम होगी। तिखास से आपकी खाना और भारी खाने पचेंगे। तिखास मतलब आप खानों से, और सास से आपको, आपके बॉडी को सिग्नल मिलेगा कि आपका खाना बन चुका है, पच चुका है, और आपकी स्टूल्स अच्छे होंगे। तो हमारा जो दाल चावल रोटी सब्जी का खाना है वो इस तरह का खाना है। 60 प्लस के बाद आप थोड़ा सा अनाज हल्का सा कम कर सकते हैं, हल्की सी दाल कम कर सकते हैं क्वांटिटी में। मैं सबको कहती हूँ कि आपकी क्वांटिटी कम करो, खाने की क्वांटिटी कम करो, मगर खाने के स्वाद बताइए। अच्छा, अब मैं आप लोग से, हमारे पास अभी 20 मिनट हैं बाकी हैं, पर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि सबको, आप लोगों को लंच ज्यादा हमको भारी खाना चाहिए कि हमको डिनर ज्यादा भारी खाना चाहिए? लंच। लंच। और क्यों? क्योंकि वो डिनर में के बाद सो जाते हैं, 3 घंटे चाहिए डाइजेस्ट करने के लिए, फूड डाइजेस्ट करने के लिए। वेरी गुड। जो सबसे बड़ी मिस्टेक होती है लोगों की, खा के सो जाना। खा के आप सो जाएंगे तो आपका शरीर बंद हो जाएगा, जो आपका पचन होना है वो पचन वहीं रुक जाएगा। दूसरी बात, सूर्य, राइट, हमारी आंखें, कोई होते हैं जैसे बैट होती है, आउल होती है, चमगादड़ होते हैं, कोई जानवर, कुछ जानवर होते हैं उनको अंधेरे में दिखता है, मनुष्य को दिन में दिखता है। तो आप सोचिए कितने हजारों सालों तक, लाइटें तो अभी आई है हमारे दुनिया में, अगर हमको दिन में दिखता है उसका मतलब ये होता है कि हम सूर्य के साइकिल के साथ, हमारे शरीर का साइकिल है, जब सूर्य तेज है तब हमारे शरीर का भी, सूर्य हमारे शरीर की अग्नि होती है पेट में, जब सूर्य स्ट्रांग है तो हमारी अग्नि स्ट्रांग है। उस टाइम, खाने के टाइम, लंच टाइम, सूर्य सबसे स्ट्रांग होता है, वो टाइम है खाना खाने का। सूर्य की किरणों के साथ हम खाना खाएं। लंच, पहले जमाने में जब लाइट नहीं होती थी, जैसे अंधेरा हुआ, लोग बहुत ठंडी देशों में उन्होंने एक सूप बना के रख लिया, लालटेन के संग एक तरह का सूप पीते थे, उसमें गुड फैट होता था। मगर ये पूरे मिश्रण का खाना नहीं खा सकते हैं डिनर में, एक छोटी चीज आप खाइए और सो जाइए उसके 2 घंटे बाद। मैं सबको कहती हूँ अंधेरे के बाद तो खाना ही नहीं चाहिए। अंधेरे के बाद दूध पी लो, भूख लगे तो थोड़ा सूप पी लो, मगर अंधेरे के बाद हमारा शरीर खाना नहीं पचा सकता है। इसीलिए तो जैन लोग होते हैं वो ऐसा ही सनडाउन के बाद नहीं खाते हैं। हाँ, और मैं जैन घर में बड़े हुई हूँ, हमारे घर में सब दिन से खा लेते हैं, और दिन से खाने पे मेरी
बड़ी मम्मी, मेरी सब मम्मी, सब 70 साल के ऊपर हैं और सबका शरीर में किसी को कुछ भी कंडीशन नहीं है, किसी को ब्लड प्रेशर नहीं, किसी को कोलेस्ट्रॉल है नहीं, किसी को कोई तकलीफ नहीं, राइट? खाना हमारा ठंडा होना चाहिए कि खाना हमारा गर्म होना चाहिए? गरम गरम क्यों होना चाहिए गर्म? क्योंकि वो अच्छे से डाइजेस्ट होता है, हम खाते हैं। बिना गर्माहट के कुछ नहीं पकता है, बिना गर्माहट के कुछ नहीं पचता है, आपकी अग्नि बंद हो जाती है। दुनिया में कुछ भी आपको चेंज करना है, आपको उसमें गर्म, आपका फोन चार्ज करना है तो भी आपको चार्जर गर्म हो जाता है, वो गर्माहट से ही ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो आपको ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आपको गर्माहट की जरूरत है। खाना अमेरिका में लोग बहुत ठंडा खाते हैं, ठंडा पानी पीते हैं, ठंडा खाते हैं, और क्योंकि मैं लोगों के संग काम करती हूँ, मैं जानती हूँ कि कितने लोग बीमार रहते हैं ठंडे खाने से। और अभी मैं आपको एक लास्ट बात पूछूंगी और फिर उसके बाद अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है आप मुझे पूछिए। मैं लास्ट बात ये मैं पूछती हूँ, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है हमारा शरीर सूखता है कि हमारा शरीर में नमी होती है? सूखता है। सूखता है। हमारा शरीर एक दिए जैसा जलता है, जैसे दिया जलता है ना, तेल कम होते जाता है, और Right, तेल right. कम होता है तो आग भी कम होती जाती है। हमारी लाइफ एग्जैक्टली वैसे, बच्चा होता है कुछ भी खा लेता है, एक बच्चे में एक तरह की नमी होती है एकदम, बच्चों के गाल, बच्चों की चमड़ी, सब चीज में एक तरह की नमी होती है। और जैसे जैसे राइट, जैसे हम जवान होते हैं तब हमारा फ्लेम बढ़ जाता है, हमारे शरीर की गर्मी बढ़ जाती है, एक तरह का, जो आप सोचिए दिए में जब जब दिया सबसे ऊंचा जलने लगता है, फिर जैसे जैसे हम बुढ़ापे की तरफ आते हैं हमारा वो हमारा तेल कम होने लगता है, शरीर का तेल कम होने लगता है और हम जाते हैं। तो मैं सबको ये बोलती हूँ, अगर आपको अपने शरीर को बचाना है तो आपकी उसकी नमी को बचाना है, मगर एक उम्र के बाद आप बहुत तीखी तेल नहीं खा सकते हैं क्योंकि आपकी आग भी कम हो रही है, आपकी शरीर की अग्नि भी कम हो रही है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एक उम्र के बाद आप अपने शरीर में तेल की मालिश करिए, अपने हाथों से भी आप कर सकते हैं, वो आपके जॉइंट्स के लिए अच्छा है, आपकी नींद के लिए अच्छा, कोई भी तरह की तो तेल लगाना, अपने के लिए अच्छा है। इंडिया का ये गिफ्ट है दुनिया को। आप तिल का तेल ला सकते हैं, अमेरिका में बहुत अच्छा तिल्ली का तेल मिलता है, कोई आयुर्वेदिक तेल भी मिलते हैं, धन्वंतरी तेल ला सकते हैं, इंडियन में धन्वंतरी तेल मिलता है। आपके अगर आपने जॉइंट्स पे तेल लगाया, आपके शरीर पे तेल लगाया, या आप नहाने के पहले करें, नहाने के पहले मन नहीं है तो नहाने के बाद करिए, थोड़ा सा बैठ जाइए कुर्सी पे और थोड़ा अपने शरीर में, आपके जॉइंट्स में, सब जगह आप तेल लगाइए, जहां जहां लगा सकते हैं आप तेल लगाइए। ये करने से आपको नींद अच्छी आएगी, आपको बेचैनी कम होगी, आपका शरीर अच्छा रहेगा, और इसी का नाम है अपने आप को, अपने शरीर का ध्यान रखना। मेरी उम्र में जब हम इस उम्र में होते हैं, यंगर उम्र में, हम घी, मैं मसाज भी करती हूँ, मगर मैं अंदर से भी घी अच्छे से खाती हूँ क्योंकि मेरे पास अग्नि है। आपकी उम्र में अग्नि थोड़ी ढल जाती है, थोड़ा कम जरूरत है, मेरे से कम। बस ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी। मैं ये नहीं चाहती हूँ कि आप लोग सिर्फ आयुर्वेद के पास तब जाएं जब आपको कोई बीमारी हो। मैं ये बताना चाहती थी कि आप हर चीज में, आपके हर मील में, एवरी मील हैज आयुर्वेदा इन इट। If anybody has any questions, Dr. Rao, they can ask. Otherwise, I'm done with the presentation. Yes, Geetaji conducts the session, so she would announce the floor is open. Right. I want to ask a question. Yes, Madhu. It is very important to me. I get a lot of acidity and gas, after eating. Even if I've eaten less, or I don't eat chilies at all now, but still I get acidity. So I take, I'm told to take Omaze before the food. And even then, sometimes like I get a lot of acidity. Like a certain thing aggravates it, I don't know why. Once it was wine,
and something, maybe it was empty stomach. Second time I had curry rice. That day I was sort of fasting, but I had had something like sama and all in the daytime, but still I got very severe acidity, like pain in my chest. So I just wanted to know what I should avoid. Okay, so you want to definitely minimize your tikha, you want to minimize your khatta, so sour, spicy, and salty, all three. Some of the things, right, that give people a lot of acidity, which they're not familiar with, is tomatoes and eggplant. So garlic, tomatoes, eggplant are three culprits in our food. जिससे अगर आपको acidity की tendency है, तो ये तीनों चीजों से, these three things can tremendously aggravate your acidity. Also, what happens is when people go hungry for a long time, अग्नि का तो टाइम हो गया, मतलब सूर्य तो निकल गया, आपके शरीर का जो सूर्य है वो निकल गया, मगर अगर उसको खाना नहीं मिला है, then it starts burning your insides, it starts getting angry, you know, and then it starts getting angry and you start having acidity. I tell people things like amla powder mixed with mishri powder. Amla powder mixed with mishri powder is a good thing to have. You have acidity, you can have it 3 times a day, no problem. You can mix it and keep it, and you can just sit and lick on it. Sauf mishri ka powder. So you know how you see sauf and mishri in Indian grocery stores? Sorry, in Indian restaurants. Get together or you make it? No, you can buy it and you can put it together. Okay, so mishri, not sugar. Yeah, mishri, sauf, mishri, and nariyal. If you can get nariyal, then you can get coconut also. But if you cannot, then just get whatever you can get from this. The ideal combination is sauf, mishri, and coconut. But whatever you can get, you want to put that. So have that also a few times a day. And amla and rock sugar, have both these combinations. When you feel really hungry. Amla powder and rock sugar, I should write down actually. Yeah, amla and mishri. And you also want to have gulkand. Every now and then have gulkand. Okay. Yeah, these things, but tomatoes, garlic. And if you are drinking wine, you cannot drink wine on an empty stomach at all. No, in fact, I stopped alcohol completely. Yeah. After a certain age, plus everybody wants to sit and eat. Khade khana zahar hota hai. When you're standing and eating, आपके जो शरीर का एक बेस बनना चाहिए. पता है, अगर हमारे शास्त्रों में हर चीज में एक ऐसे पैर ऐसे होने चाहिए पलाथी में. जब आप ऐसे रहते हैं ना, तो एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है, आपकी अग्नि तेज जलती है. अगर आप खड़े होते हैं, आपकी अग्नि लीक करती है. Yeah. So you always, if you can sit cross-legged, I understand it's not easy after a certain age, अगर आपकी आदत नहीं गई है, तो एटलीस्ट आप नॉर्मल बैठिए, नॉर्मल कुर्सी पे बैठिए, खाते वक्त स्लो डाउन करें. चबाने से थूक बढ़ता है, पचन अच्छा होता है. धीरे धीरे खाएं. हम सबको आदत हो गई है, हम फोन पे देखते हुए खाते हैं, बात करते हुए खाते हैं. खाना शांति से खाएं. Yeah, you are right. Yeah. Thank you so much. Of course. Sauf, coconut and mishri, you said. Yeah, right? absolutely. Thank you, because I really have a bad problem. Yes, please. And टमाटर नहीं खाना, टमाटर लहसुन. टमाटर तो सब्जियों में पड़ता है. I don't cook जो बनता है थोड़े पड़ते हैं, ज्यादा नहीं. हाँ, तो पल्प निकाल के बोलिए, सबके शरीर के लिए खराब है वो. Okay, all right. Thank you so much. Of course. Yes, Rita ji, go ahead. Thank you. What a beautiful presentation. Nice. I never knew that garlic creates the gas. I have, acidity issue. I never knew that. This is the first time I'm hearing it. And you have been in New York, as Dr. Rao mentioned it to us. Where to find, we find pink Himalayan salt. We don't find white Himalayan salt. You have any idea where can I find it? Indian grocery store में सेंधा नमक, वो white Himalayan salt होता है. Okay. हम उसको सोमा बोलते हैं, white Himalayan salt होता है. मेरे घर में सालों से we use pink also because वो easy होता है मिलने. न्यूयॉर्क मैनहट्टन में it's hard.
but I don't use any other salt. बहुत साल हो गए, 10-12 साल हो गए, या तो पिंक सॉल्ट यूज करते हैं या व्हाइट सॉल्ट सेम का यूज करते हैं, और कुछ तीसरा सॉल्ट यूज ही नहीं होता है। ओके, कुछ Okay, एग्जाम्पल last दे सकते हैं हाँ, आप? डंडेलियन ग्रीन जो आपने बताए हैं खाने के लिए, वो हाँ। कौन कौन से हैं? मतलब एवरी ग्रीन वेजिटेबल, दैट्स व्हाट यू मेंट? भाजीज, जनरली भाजी जो खाने में कड़वी लगती है फिर पक के ठीक लगती हैं, राइट? जैसे मेथी की भाजी हो गई, मेथी when you try it you don't like the taste, but you put little bit of ghee in it, or you put a little bit of, you make masala in it, put jaggery, methi ka thepla, right? Or you have palak, you have chandalia, you have any kind of bitter greens, right? अच्छा, सरसों थोड़ी गर्म होती है, तो सरसों is a little, because उसमें तिखास भी होती है, so सरसों is a little bit different, but besides that, right, a lot of the greens, केल आपने ले ली, पालक, Yes. चंदलिया ले ली, मेथी खा ली, कढ़ी पत्ता डाल दी, तो आप कढ़ी पत्ता डालिए, सबसे इजी है। दिस इज हाउ आई इंक्लूड, आई हैव 2 young daughters, उनको रोज नहीं खाना रहता है भाजी, पर मैं बहुत सारा कढ़ी पत्ता खाने में डालती हूँ। But करी पत्ता जो is करी not bitter. पत्ता है वो हम लोग डालते हैं, सांभर में डालते हैं, मतलब उसका असर आ जाता है तो निकाल के फेंक देते हैं, और उसको खाना भी चाहिए। आपके वघार में डालना चाहिए आपको कढ़ी पत्ता, वघार में डालेंगे तो वो थोड़ा क्रिस्प हो जाता है, और उसको आप काट के डालिए तो आपके मुंह में आएगा, पता भी नहीं चलेगा आपको। ओह, ओके, थैंक यू, थैंक Hi, यू। I have one question, please. I am diabetic. So what about mishri or desi gur? नो, सो इफ यू आर डायबिटिक, आपको फिर पता है किसी के साथ आप काम करें, आयुर्वेद बहुत अच्छा समझता है डायबिटीज को, मगर हर शरीर अलग होता है। मेरे कुछ डायबिटिक्स पेशेंट होंगे, मैं उनको बोलूंगी आप खा सकते हैं, उनको मैं बोलूंगी आप बिल्कुल नहीं खा सकते हैं। तो आपकी जब आपको कोई ऐसी कंडीशन है तो इट्स बेटर कि आप किसी के साथ काम करें। आप सौंफ खा सकते हैं, सौंफ में प्रॉब्लम नहीं है, मगर Soap I am eating. Yes, but I am not mixing mishri with soap. no, that's fine, that's completely fine, you can just have salt, not a problem. And what about plant sugar like Truvia or? No, I would not advise that. Truvia is as processed as sugar is. Truvia, okay. as processed. One thing I will tell you all, everybody out here, you don't want to eat basmati rice. The rice you want to eat, and I would write this down actually, is Sona Masuri. So normal rice, Sona Masuri you get in every grocery store. It's a shorter rice, it's a dry rice. Normal rice. हाँ, no, it's not kolam, it's different. It's called Sona Masuri, बहुत मिलता है, अरे it's in every grocery store, and it's called Sona Masuri. It's short, much easier to cook, and उससे आपका sugar ज़्यादा नहीं बढ़ेगा Sona Masuri से. It's a very easy to digest rice. Okay, thank you so much. Of Thank course. you. Thank you. Why not basmati? Basmati is. Basmati, say up once you make Sona Masuri and you see how it cooks, you will understand why Sona Masuri. जैसे खाना पकेगा वैसे खाना पचेगा। अगर आपका खाना, when you have beans, it is so hard to cook the beans. It is very hard to digest the beans. When you cook beans, it leaves your pani chikna. When you eat beans, it will leave your stomach chikna. अब ये बात याद रखना, जैसे पकता है वैसे पचता है। हाँ, okay. I have one more question, please. हाँ. How about beet and carrot if I'm diabetic? Again, depending on your body. So when you're diabetic, I feel nervous to give you general advice without you actually working with a practitioner and understanding your body. Okay, if I make beet juice with bitter juice and mix it together, how about that? Means I think eat it's worth beet trying. only quarter beet, small piece of beet. I think it should be fine. Put some curry patta also in it. Oh, okay. I add curry patta in my buttermilk. I mean chash.
सब में डालो, जिसमें आप डाल सकते हो, not a problem. Acha, thank you, Ji. Thank you. Yeah. Thank you. I have only 4 minutes. I Yes, just want to tell I you. know, like Harvansh auntie ji, like, yes, you have any question? You have raised your hand. Harvansh Kumari. I have, And even Neelam ji has a question. Both have a question. I see that. yeah, Yes, yeah. let's take Harvansh if she is ready. Yeah. Yeah. Harvansh but auntie ji, you have any question or just you raised by mistake? I think she had asked me the question earlier, if I'm not mistaken. No, Harvan. Okay, Neelam ji can ask. I think she's. Hi, Nidhi. I'm Neelam. As you know, might have been seen on me on the screen. I just have a follow-up question on somebody asking you about the salt. I had hypothyroidism, and somebody told me I should have iodized salt only. So is that a good idea, not to have Sendha Namak, not to have Himalayan, but only iodized? I'll tell you the reason why a lot of people get thyroid is because of the fluoride in the water. Because the fluoride messes with the iodine. And when that happens, then you balance it with iodized salt. Since you already have hypothyroid, that might have some merit. When people don't have any condition, I tell them don't even get into the trap. You know, so again, with you, Neelamji, I would be more comfortable trying it out first for 3 weeks and getting a blood, you know, so the next time you have blood work, try even for 2 weeks. Start with No, now it's okay. With Ayurvedic medicine, it went away in 3 months. I Then don't I would- have it now. Yeah, so but still, before your next blood test, I would ask you to try a Sendha Namak for 2-3 weeks and see if anything has fluctuated. Okay, I want So to say I can stop iodized. I can stop iodized for 3 weeks. I would say it's worth trying for a few weeks and seeing. Okay. Right for a blood test. Okay, I want to say one last thing. I find it important before I can go, is that don't want to have bottled water. Okay, bottled water is fermented water. It's very heavy to digest. You want to have either boiled and cooled water, or you want to have water running through a tap or a filter. Behta hua pani hi pina chahiye. I'll tell you why. If you leave water in a cup also, and you go out for vacation and you come back in 3 days, that water has become chikna. It has become a little slimy. So water in bottles is never clean water. It can affect your body. It's very, very heavy. So you never want to have bottled water. I mean, once in a while you're outside, you're thirsty, have whatever, doesn't matter. But on a regular basis at home, you want to have flowing water. Oh, wow. That's so useful info. Highly Yeah. appreciate it. Highly Yeah, appreciate so don't say. I have 1 minute, sorry, because I have another call, but I know you have a question. Usha ji, let's take it quickly. यस, करी पत्ता का पूछना था मुझे. करी पत्ता ड्राई अगर है तो उनको यूज कर सकते हैं? सूख जी. गए हैं. जी. कर सकते हैं. जी. Thank you. Of course. Okay. I have to thank you. Very nice, very informative, Okay, very so good. I'm glad. I'm Yes. glad to be here. I'm sorry, my alarm for my next call is gone off. Yes, It was so Nidhi ji, wonderful. thank you so much for coming to India Home, and like the way you explained in a Aam Aadmi ke language, you know, it makes I much tried. interesting. And this one, instead of using, I mean, medical terms, or this one, it approaches more to anyone. So thank you so much for coming to India Home. It was wonderful presentation. Thank you very much. Thank you. you.